Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal, representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking exercise number 6.1 of the chapter number 6, class 11th Mathematics. Class 11th Mathematics. Trigonometrical ratio of compound angles. What is the meaning of the compound angles? जैसा मैंने बताया था लास्ट में 30, 45 are the fundamental angles. In between are known as the compound angles. What is the demand of question? If sin A equal to this and cos B equal to this, then we have to find the different values. different values, that means different जान दो, सब निकालेंगे इसी वीडियो में, हम सारी चीज़ों को देख लेंगे. given that sin A equal to 4/5 and cos B equal to 5/13. स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पेज छोड़ी बिकॉज मैं तो टीचर हूँ, बट आपको कैसे पता चलेगा हम इसको ध्यान से समझेंगे. sin A plus B, sin A plus B, that means sin A cos B plus cos A sin B. Student, what is the standard formula of sin A plus B? sin A plus B, that means sin A cos B cos A sin B. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, we have the value of the sin A, we have the value of the cos B, बट मेरे पास कहीं पे भी cos A और sin B की वैल्यू नहीं है. मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला बताइए. sin square थीटा प्लस cos square थीटा विल बी इक्वल ऑफ 1. सो sin square थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos square थीटा. या आप बोलेंगे सर मुझे cos निकालना है, दैट मीन्स 1 माइनस sin square थीटा. आप बोलेंगे स्क्वायर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रूट, मतलब कहीं ना कहीं साइन से मैं कोस और कोस से मैं साइन को कैलकुलेट कर सकता हूँ. स्टूडेंट, साइन ए कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कोस थीटा बाय यूज ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट, 1 माइनस साइन ए, साइन दैट मीन्स 4/5 होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 minus 16, that means 9. So root 9 will be equal of 3, so 3/5. अगर जो आपको ये ट्रिक समझनी है स्टूडेंट, तो आप दूसरा क्या करेंगे, ठीक है. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बाय यूज ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव टू कैलकुलेट द बेस. cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सिंपल है सर. चलिए, cos b, बाय यूज ऑफ द cos b हम निकालेंगे sin b. sin थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट, 1 माइनस cos b, cos थीटा दैट मीन्स 5/13 होल स्क्वायर. स्टूडेंट, 5 5 जा 25, 3 3 जा 169, 169 minus 25, that means 144, 144, that means 12. So 12/13 is a required solution. We getting cos A by use of sin A, sin B by use of cos B. We have to find first one, that is the first. Second, cos A plus B. Third, sin A minus B, and cos A minus B. हाँ, साइन ए प्लस बी आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी. चलिए स्टूडेंट, साइन ए विल बी इक्वल ऑफ 4/5, कोस बी विल बी इक्वल ऑफ 5/13 प्लस कोस ए विल बी 5, दैट मीन्स कोस ए विल बी 3/5 एंड साइन बी विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 12/13. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. मैथमेटिक्स बिल्कुल उल्टा है सर. जब इक्वल दैट मीन्स सीधा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस है तो सीधा मल्टीप्लाई होगा. 4 5 जा 20 एंड 5 इंटू 13, 13 5 जा 65 प्लस 12 into 3 will be equal of 36 and again 65. There is the time for the LCM. LCM कितने टाइप का होता है स्टूडेंट? 2 टाइप का. या तो डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे. इन द केस ऑफ द व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, सो वी टेकिंग द कॉमन फैक्टर 65. Here 20 plus 36, 20 plus 36 will be equal of 56. Student,
second part of question we have to find the value of cos a plus b. What is the mean of the cos a plus b, student? Cos a plus b identity cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. आई रिपीट, हर एक बार एक चीज बताऊंगा. इन द केस ऑफ द साइन, साइन के फॉर्मूले में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बट इन द केस cos a plus b और cos a minus b, positive convert into the form of negative, negative convert into the form of positive. Now cos a cos b minus sin a sin b. Cos a, where is the value of the cos a? Cos a will be equal of 3 by 5. Cos b will be equal of 5 by 13. Now sin a, where is the sin a? Will be equal of 4 by 5. And last one sin b will be equal of 12 by 13. Student, now time for multiply. 3 5 ja 15 and 13 into 5 will be equal of 65. सिंपल, ठीक है. 12 into 4, ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 48 एंड नीचे 65. ठीक है स्टूडेंट, we take the LCM between the 65 and 65 will be equal of 65. Finally 15 minus 48 plus minus minus larger number consists the negative sign, so result in the form of minus. Plus minus minus 8 minus 5 equal to 3 and 4 minus 1 will be equal of 3. ठीक है 65. ये दोनों किसी नंबर से कैलकुलेट हो रहे हैं क्या? नहीं सर. आप बोलेंगे मुझे कैसे पता? ध्यान से सुनिएगा. द सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, बोथ आर द ऑड नंबर, बोथ आर द सिमिलर नंबर. मतलब ये कभी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए माइनस बी. सोचिए, आके बंद करिए, यहाँ पर प्लस है. नाउ वी टेक द माइनस. साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल ऑफ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. दैट मीन्स सिंपल. बाकी सब है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव. सो लास्ट वन इज द नेगेटिव. प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 20 विल बी इक्वल ऑफ 16. विल बी इक्वल ऑफ 16. फिर से देखिए सर, 5 और 6 ये दोनों डिफरेंट है, 1 और 6 ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये नंबर आपस में कैंसिल नहीं होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन, cos a माइनस बी. व्हाट इज द मीन ऑफ द cos a माइनस बी? अभी हाल हमने करा है cos a प्लस बी. प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा. ठीक है, आ रहा है समझ में हमको सर? लास्ट वन, प्लस 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 5 and 8 will be equal of 13. Carry 1, that means a 6, that means a 63 upon में 65. I hope student you getting the solution of the first question. Recall कर देता हूँ. If sin A equal to this and cos B equal to this, we have to find the values of the following. आप बोलेंगे सर what is the mean of this sentence? ये जो A और B है, here A and B both are the angles. तो पर्टिकुलर जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है. दिस फंक्शन जो साइन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बी ऑलवेज लेस देन पाई बाई 2. मतलब कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ पर मैं b की जगह पर कोई भी वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी लूँगा तो मेरी आइडेंटिटी मे बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ फॉल्स. सो साइन ए एंड कोस बी, बाय द यूज ऑफ द साइन एंड कोस वी गेटिंग द कोस ए एंड साइन बी. एंड फाइनली आई पुट इन द प्लेसेस ऑफ द साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी एंड गेटिंग द वैल्यूज. दो वैल्यू मैंने हटा दी है. लास्ट वन 16 by 65 and 63 by 65. Student, next question, question number 2. If sin A will be equal of 12 by 13 and cos B equal to 4 by 5, condition is there, the values of the A more than 0 and the values of B less than pi by 2, we have to find the value of following. I introduce new identities 10A plus B and 10A minus B. Solution. Given that sin A will be equal of 12 by 13 and cos B will be equal of 4 by 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ध्यान से देखिए. एज ए स्टूडेंट कैसे करते हैं? डिमांड ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन A प्लस B. दैट मीन्स साइन A cos B प्लस cos A साइन बी. आप बोलेंगे सर ऑलरेडी आई डन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन द प्रीवियस क्वेश्चन. मैं यहाँ पर पूरा फोकस करूँगा आपको ये दो नए क्वेश्चन करने की, बट फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं.
ठीक है, साइन ए विल बी इक्वल ऑफ 12/13 एंड कोस बी विल बी इक्वल ऑफ 4/5. व्हाट अबाउट कोस ए एंड साइन बी? सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा convert into the form of cos theta under the root 1 minus 12/13 whole square will be equal of 12, that means 144, 13, that means 165, 169 minus 144 will be equal of 25, root 25 will be equal of 5. ठीक है, फिर से मैं बोलूँगा, आपको ये समझ नहीं आया है तो यू चूज द अनदर अल्टरनेट सॉल्यूशन. साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. बाय यूज ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस वी हैव टू फाइंड बाय यूज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम बेस. देन cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. नाउ cos b convert into the form of sin b. Sin theta equal to under the root 1 minus 4/5 whole square. 4/5 whole square, that means 116/25. 25 1 जा 25. 25 minus 16 will be equal of 9/25. That means 3/5. Student, so we have to value cos a. Cos a will be equal of 5/13 and sin b will be equal of 3/5. Student, multiply 15 into 5. 13 into 5 will be equal of 65 and 12 4 ja 48. 5 3 ja 15 and 65. 65 take the LCM, then finally we getting 48 plus 15. 48 plus 15, 8 plus 5 equal to 13. Carry आया 1. 63/65 लकी नंबर. लास्ट क्वेश्चन में भी ये एक आंसर आया था. चलिए अब हम लेट वी कंसिडर मान रहे हैं आप, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिमिलर है, कर लेंगे. नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 5th. 10a plus b. What is the mean of the 10a plus b? You know that about the identity 10a plus b. That means 10a plus 10b 1 minus 10a 10b. कुछ बच्चे इतने प्यार से पढ़ते हैं इस फॉर्मूला को. 10a plus 10b इक्वल टू 10a plus 10b अपॉन में 1 माइनस 10b. वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द 10a एंड 10b. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, साइड में मुझे बताना पड़ेगा. 10a tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा. सो साइन ए विल बी इक्वल ऑफ 12/13. sin a cos a 12/13 by 5/13. So we getting 12/5. Second value student 10b will be equal of sin b by cos b. इतने तो आप बच्चे नहीं हो जो समझोगे नहीं. sin b, where is the sin b? sin b that is 3/5, cos b 4/5. 3/5 एंड ठीक है, मुझे एक बार चेक करना है. साइन ए 12/13 एंड कोस ए 5/13. साइन बी इक्वल टू 3/5 एंड कोस बी 4/5. करेक्ट. 5 से 5 कैंसिल हुआ, देन वी गेटिंग द 3/4. स्टूडेंट, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द 10a एंड 10b ऑन द प्लेसेस. 10a that means 12/5 plus 10b 3/4. again 1 minus 12 into 5 into 3/4. LCM लीजिए स्टूडेंट. these into this that means 48. these into this that means 15 अपॉन में 5 4 जा 20. नीचे देखिए, नीचे मतलब यहाँ पर देखिए 12 into 3 that means 36. 5 4 जा 20. स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है. धीस प्लस धीस 8 plus 5 13. कैरी आया 163 लकी नंबर. धीस इंटू धीस दैट मीन्स 20 माइनस 16 विल बी इक्वल ऑफ माइनस 16 अपॉन में 20. कैंसल, देन वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट माइनस 63 अपॉन में 16. रिकॉल कर दूँ, बड़ा क्वेश्चन था, छोटा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि ये बिल्कुल 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 99.99% सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसा जो आज हमने अभी देखा. देखिए, वी हैव द वैल्यू ऑफ द साइन ए एंड कोस बी. बाय द यूज ऑफ द साइन ए कैलकुलेट कोस ए. बाय द यूज ऑफ द कोस बी कैलकुलेट साइन बी. देन 10a plus b विल बी इक्वल ऑफ 10a plus 10b 1 minus 10a 10b. सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करा. देन वी गेटिंग माइनस 16/63. आई होप स्टूडेंट कि आपको
ये जो वेरिएशन जो मैंने आज बताया वो समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।